Hello young brain, I'm Dr. Mohit Gurjar. Once again I welcome to you all on my YouTube channel Extension Chopal. So today we are going to discuss program planning, its meaning, principles and process in detail. So stay tuned with me till the end of the video, and in the end of video we will discuss some important facts related to the today's session. So keep watching my video. So without wasting any time, let's start the today's session. Okay, well, before starting the today's session, I want to make it clear to all what is the difference between planning and another term is project. As generally you know that whenever we are going to organize a long-term event, that is always considered as program, and when we are going to organize a short-term event, that is always considered as project. This is the basic difference between program and the project. Let's start with the program planning. Program planning is the process of making decisions about the direction and intensity of extension education efforts of extension service to bring about social, economic and technological changes. As you all know that when we are going to organize a program related to the farmers and other person of the society, you have to remember always your program should be based on need and interest of the peoples. If your program is not based on the need and interest of the people, then the participation of the peoples of the society will be less. And if the participation is the less, then definitely you can say your program will be failed. अगर आपका participation ही नहीं होगा तो आपका program क्या हो जाएगा? Fail हो जाएगा. तो first of all, in general you can say starting point of the extension work is need and interest of the peoples. As you know that we have to work on social, economic and technological aspect of the society. हमें उनमें development करना पड़ेगा. Social aspect of the society, economic aspect of the society, and third one is the most important, that is technological aspect of the society. We have to introduce new technology related to the farmers, related to the general public. Then the participation of the farmers and the other person will be high, and our program will be succeed. One other important definition given by the Kelsey and Herne, that is most important. It can be asked in your competitive exams. And generally, according to the Kelsey and Herne, an extension program is a statement of SOPs. SOPs means simply you can say S for situation, objective, problem and solution. Another one function of the extension program is to provide a clear guide, a blueprint or plan useful to extension worker इन कंडक्टिंग ऑनगोइंग एक्सटेंशन प्रोग्राम. जो भी हमारा एक्सटेंशन प्रोग्राम होगा, जो चल रहा है ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं, अगर आपके एक्सटेंशन वर्कर के पास our extension worker having a proper planning of that particular program project, then it can execute it effectively. अगर उसके पास proper planning होगी तो वो उसको helpful भी होगी, उसको पता होगा कि step by step क्या करना है, what is the first step, then what is the second step and then what is the third step. एंड सिमिलरली उसको पता होगा कि कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि वी आर गोइंग टू फॉलो ए पर्टिकुलर स्टेप टू अचीव द एंड्स. जो भी हमारा एंड है, गोल है, उसको अचीव करने के लिए हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं. तो सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड टू अचीव द पर्टिकुलर गोल. Now coming to the meaning of planning and program planning, that is again most important. The meaning of planning is to solve the problem by using the available resources. जो भी आपके पास availability of resources है, first of all you have to identify your resources. आपके पास availability of resources क्या है, and based on your availability of resources how you can solve that particular problem. जो भी आपकी problem arise हुई आपके एरिया में, आपके particular farmers के सामने, in front of their particular farmers, तो उनको problems को आप कैसे solve कर सकते हैं, that is the actual meaning of planning. And another one that you can say to make necessary policy and to work for achieving the goals. यानी कि कोई पॉलिसी बना देना उस चीज़ के लिए बेस्ड ऑन योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है, उसके बेसिस पर प्रॉब्लम्स क्या है, उनके बेसिस पर एक पॉलिसी बना सकते हैं टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल. जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए आप एक पॉलिसी भी बना सकते हैं वहाँ पर. नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज द डिजाइनिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव एंड्स. प्लानिंग से हमें क्या पता चलता है, कोर्स ऑफ एक्शन होता है, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप का पता चल जाता है हाउ यू कैन अचीव योर गोल्स, हाउ यू कैन अचीव द एंड्स. जो भी आपका एंड है, अचीव गोल्स है, टारगेट्स है, उसको कैसे अचीव किया जा सकता है. सपोज वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश ए ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द फार्मर्स, देन इट शुड बी बेस्ड ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो इट शुड बी बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द फार्मर्स. तो हमें पता होना चाहिए कि पहले उनकी नीड होगी. बेस्ड ऑन नीड वी कैन फ्रेम ऑब्जेक्टिव, देन वी कैन अरेंज टीचिंग मटेरियल्स, टीचिंग इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा, देन इवोल्यूशन, देन रिकन्सिडरेशन. सोटर ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया एक वीडियो में. तो वो पता होना चाहिए कि पहले हम सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे, देन उसके बेसिस पर आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि उनकी नीड्स क्या है,
ये हमारे प्रोसेस रहेगी। सो ये हो गया आपका कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम प्लानिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद द पीपल एंड an effort to recognize the unsatisfactory situation and determine possible solution or objective and goals. Basically, if you are an extension worker, that is your prime responsibility is to identify the problems. You have to, how you can identify the problems based on the analysis of situation. सबसे पहले क्या करेंगे आप analysis of situation कर लेंगे, उसके basis पर आपको पता चल जाएगा कि वहाँ की problem क्या है। Based on problem you can set your goals, you can set your objectives. तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके फॉलोअर्स हैं या फिर आपके रेसिपिएंट्स हैं, जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं, जो आपके फार्मर्स हैं, उनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली उनकी हेल्प किस में करनी है? यू हैव टू आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम्स एंड हाउ वी कैन सोल्व देयर प्रॉब्लम्स। उनको आइडेंटिफाई करना है, देन उनका सोल्यूशन भी देना है, डिटरमाइन करना है उनको, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग. It's very important. The planning of extension program is done on the basis of certain well-organized, recognized principle which should be clear, understood and followed by extension worker. जो भी हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के, वो कोई भी एक्सटेंशन वर्कर होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। बेसिकली प्रिंसिपल का मीनिंग लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल? प्रिंसिपल जनरलाइज्ड गाइडलाइन विच फॉर्म द बेसिस फॉर एक्शन। क्योंकि हमें प्रिंसिपल से हमें क्या पता चल जाता है कि आपको कैसे एक्शन लेना है, किस डायरेक्शन में एक्शन लेना है, आपको डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पता चल जाता है आपको कि हाउ यू कैन टेक योर एक्शंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग, द प्रोग्राम प्लानिंग शुड बी बेस्ड अपॉन केयरफुल एनालिसिस ऑफ इफेक्चुअल सिचुएशन। मीन जो भी आपके पास पर्टिकुलर सिचुएशन है, जिस पर्टिकुलर एरिया में काम करना है, उसके फैक्ट्स को आपको केयरफुली आपको एनालिसिस करना है। बिकॉज आफ्टर द एनालिसिस ऑफ फैक्चुअल situation we can find out the problem या we can find out the situation of that particular area। हम उस एरिया की सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वहाँ की प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स, ये हमें पता चल जाएगा बाय द फैक्चुअल एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। जब हम फैक्चुअल एनालिसिस करेंगे तो इसमें आपको क्या होना है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, आपको केयरफुली इसको एनालिसिस करना है। नेक्स्ट वन इज इन ए गुड प्रोग्राम प्लानिंग problems for action are selected on the basis of recognized needs. In a good program planning, problems for action are selected on the basis of recognized needs. अब इसमें क्या होगा कि आपको जो भी रिकॉग्नाइज नीड्स आपको लगती हैं, जो आपने रिकॉग्नाइज किया, आइडेंटिफाई किया है, उन नीड्स को हम अपने प्रोग्राम प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इन ए गुड प्रोग्राम प्लानिंग प्रॉब्लम्स फॉर एक्शन आर सेलेक्टेड, हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को सिलेक्टेड करते हैं जो हमने रिकॉग्नाइज किए, विच इज़ requirement of the hour, simply you can say, which is the most required, which is required by the farmers। ठीक है, जो भी हमारे रिकॉग्नाइज नीड है उनको हम एक्शन में ले लेते हैं। नेक्स्ट वन इज ए गुड प्रोग्राम प्लानिंग डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव एंड सॉल्यूशन विच आर फिजिबल एंड ओवर सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन अपने लास्ट वीडियो में भी आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक्सटेंशन वर्क शुड बी सेटिस्फाइंगनेस। अगर आपका कोई भी एक्सटेंशन एक्टिविटी है, इवन प्रोग्राम है, वो सेटिस्फैक्शनेबल नहीं है, सेटिस्फाइंगनेस नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम से पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका एक्सटेंशन एक्टिविटी या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी प्लानिंग करे, वो सेटिस्फैक्शन आप प्रोवाइड करना चाहिए, उसको सेटिस्फैक्शनेबल होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड बी सेटिस्फैक्शनेबल। ए गुड प्रोग्राम डिटरमाइंस ऑब्जेक्टिव एंड सॉल्यूशन। कुछ ऑब्जेक्टिव आप फ्रेम करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, एंड उनका सॉल्यूशंस भी होता है। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन किस पर बेसिस पर होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन ऑलवेज बेसिस ऑन द एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन को एनालिसिस किया, उसमें आपने नीड आइडेंटिफाई कर लिया, देन अपने ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर दिया। Next one, the program should be permanent and flexible to meet a long-term situation, so time changes, emergencies। जो भी आपका प्रोग्राम वो कैसा होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आपके पास लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म चेंजेस या इमरजेंसीज कुछ भी आती है आपके लोकल सिचुएशन एरिया में, तो उसको मीट कर ले, उसको फुलफिल कर दे। इट शुड बी टाइम ओरिएंटेशन, बेस्ड ऑन टाइम इट शुड बी, यू कैन मोल्ड इट एंड यू कैन चेंज इट। नेक्स्ट वन है ए प्रोग्राम हैज़ ए डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क। एक गुड प्रोग्राम जो भी आपका अच्छा प्रोग्राम होता है, उसके पास एक डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क होता है। इफ वी हैव ए डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क देन वी कैन एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम इन ए इफेक्टिव मैनर। अगर हमारे पास प्लान नहीं होगा तो इट विल नॉट ईजी टू कंडक्ट ए प्रोग्राम। तो जो भी एक्सटेंशन वर्कर होंगे उनके लिए ईजी नहीं होगा उस प्रोग्राम को कंडक्ट कराना। नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ऑब्वियस यू कैन से इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस टिल वी आर नॉट गेटिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है या गोल्स है, जब तक हम उनको अचीव नहीं कर लेंगे तब तक हमारी प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी।
Next one, program planning is a coordinating process. Yes, program planning is a coordinating process because whenever we are going to organize a program, then as you all know that it is a collaborative effort. कोई भी प्रोग्राम आप करते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. कोऑर्डिनेशन मीन्स आपका फार्मर्स के साथ एक टाई अप होना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ एक बाइंड अप होना बहुत ज़रूरी है. तो अगर ये सब चीज़ें नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होगा. And again, next one is program planning should be educational and directed towards bringing about improvement in the ability of the people to solve their own problems individually and collectively. Means आपका प्रोग्राम कैसा होना चाहिए? Your program should impart the knowledge skills to the particular farmers recipient of the program. जो भी आपके recipients हैं उनको impart कर दे क्या skills और education, ताकि वो क्या कर सकें in future they can improve their skills, they can tackle the problem इंडिविजुअली और कलेक्टिवली. वो आप कलेक्टिवली भी कोई प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअली उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं. एंड अ गुड प्रोग्राम प्लानिंग प्रोवाइड्स फॉर द इवोल्यूशन ऑफ रिजल्ट्स. जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं उनको इवेल्युएट करते हैं. बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स इवेल्युएशन वी कैन से आवर प्रोग्राम इज सक्सेसफुल और फेलियर एंड सक्सेस ऑलवेज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोग्राम. तो अगर हम इवेल्यूशन करते हैं किसी प्रोग्राम का तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल था या फेलियर था या उसका इम्पैक्ट क्या हुआ. सो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑन सोसाइटी मेंबर्स. जो भी हमारी सोसाइटी के मेंबर्स थे उनकी लाइफ पर क्या चेंजेस आए वो हमें इवेल्यूशन के बाद पता चल जाता है. Okay, now coming to the next point is the program planning process. This is very very important for your exam point of view. In many exam related to agriculture like ICR NET, UGC NET and other kind of examination, it can be asked how many steps in a program planning. तो ये पूछा जा सकता है कि आपके प्रोग्राम प्लानिंग में कितने स्टेप्स हो. So simply you can say there is 8 steps in the program planning. First is collection of facts, analysis of situation, identification of problems, determination of objective, developing the plan of work, execution of the plan of work, evaluation and reconsideration. These are the 8 steps of program planning process. ये आपके प्रोग्राम प्लानिंग के प्रोसेस के स्टेप्स हैं. Now we will discuss all the process in detail. So coming to the first point, as you all know that first point step is collection of facts. तो जो आप जिस भी एरिया में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर एरिया से फैक्ट्स को कलेक्ट करना होगा. यू हैव टू कलेक्टेड द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड दैट पर्टिकुलर एरिया. उस एरिया से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, फार्मर्स का वहाँ पर फार्मिंग सिस्टम क्या है, इफ यू वांट टू ऑर्गेनाइज प्रोग्राम रिलेटेड टू द फार्मर्स, तो फार्मर के वहाँ के फार्मिंग सिस्टम क्या है, फार्मिंग पैटर्न क्या है, उन सब की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना पड़ेगा. अब यहाँ पर डाउट किसी को आ सकता है कि वाई वी हैव टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन. कलेक्शन के पीछे रीज़न ही होता है कि आपको पता चल जाता है कि उस एरिया की रिक्वायरमेंट्स क्या है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, फार्मर, रेसिपिएंट्स, उनकी इन बेसिक रिक्वायरमेंट पता चल जाती है आपको कि वहाँ पर क्या ज़रूरत है. बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स, देयर नीड्स, वी कैन एस्टैब्लिश आवर प्रोग्राम. आफ्टर द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स वी कैन एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन. अब आपको क्या करना है, जो भी आपने फैक्ट्स वहाँ से इकट्ठा किया है उस सिचुएशन को एनालिसिस कर लेना है. एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन आपको एनालिसिस कर लेना है. ठीक है. आफ्टर द एनालिसिस ऑफ सिचुएशन नाउ यू कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया एंड पर्टिकुलर फार्मर्स. जो भी वहाँ के फार्मर्स है, एरिया है, उसकी आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. Now coming to the next point is determination of objective. Based on identification of problems you can decide your objective कि अब आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, उसमें क्या आपको डिसाइड करना है. सपोज आपने सबसे पहले क्या किया, हमने कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स कर लिया, देन एनालिसिस किया. एनालिसिस के बाद आपने वहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है. प्रॉब्लम्स के बेसिस पर आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया. देन आफ्टर द डेवलपिंग नेक्स्ट यू हैव टू डेवलप प्लान ऑफ वर्क. अब क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्लान डेवलप करना पड़ेगा. नाउ बिफोर दिस यू हैव फ्रेम्ड ऑब्जेक्टिव. आपने ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर लिया. अब इन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा. ठीक है. अब प्लान जब आपने बना लिया, सपोज यू हैव प्रिपेयर्ड ए प्लान, देन यू हैव टू एग्जीक्यूट योर प्लान. जो भी आपने प्लान बनाया उसको आपको क्या कर देना, एग्जीक्यूट कर देना है. अब ठीक है, इम्प्लीमेंट कर देना. नाउ द नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएशन. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इवैल्यूएशन प्रिवेंट्स स्टैग्नेशन.
ठीक है, जो हमारी गतिहीनता को रोक देता है। अगर आप किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगर बीच में आप इवेल्युएट करते हैं तो इवेल्यूशन से आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चल जाता है कि हाउ वी आर परफॉर्मिंग, हम सही परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितने स्टेप पीछे हैं, कितने स्टेप आगे। तो आपको एक जो आपकी गतिहीनता हो जाती है उसको रोक देता है। ये इवेल्यूशन हो गया। नेक्स्ट वन इज द रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन मीन्स इसको बोलते हैं पुनर्विचार करना या व्हाट नेक्स्ट टू डू। अगर आपको इवोल्यूशन के बाद पता चलता है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए थे वो फुलफिल हो गए, देन यू कैन स्टॉप योर प्रोसेस, अदरवाइज दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द अचीव ऑफ गोल्स। जो भी आपके गोल्स है, जब तक आप उनको अचीव नहीं कर लेंगे ये प्रोसेस कंटिन्यू चलने वाली है। सो अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द प्रोग्राम प्लानिंग स्टेप्स, दैट इज हाउ मेनी स्टेप्स कम्स अंडर द प्रोग्राम डिटर्मिनेशन। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से टोटल स्टेप्स हमारे पास 8 है, इनमें से कितने स्टेप आते हैं जो आपके प्रोग्राम डिटर्मिनेशन में आते हैं। एज यू कैन सी हियर, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। यू कैन सी हियर these steps comes under the program determination. And next, developing plan of work to reconsideration comes under the program implementation. So simply you can say first 4 steps comes under program determination and next 4 या last 4 steps comes under the program implementation. तो पहले 4 जो है हमारे इसमें आते हैं प्रोग्राम डिटर्मिनेशन में, और लास्ट के 4 स्टेप्स हमारे किस में आते हैं, हमारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कम्स अंडर द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और नॉट अंडर द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से किस में आते हैं। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। A condition that people have decided to change is problem. This is very simple. You can say a condition that people have decided to change. When the people feel uneasy in a particular situation, then you can there is problematic situation. अब किसी सिचुएशन में जब आप अनईजी फील करते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि वो चेंज कर लें उसको। When you have decided to change that particular situation, आप उस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेशन ऑफ एंड्स टूवर्ड्स विच आर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। एक्सप्रेशन ऑफ एंड मीन्स किसी भी गोल को जो हम एंड होता है, हमारा गोल एंड होता है, गोल एंड्स, उसको टारगेट को अचीव करने के लिए हमें जो डायरेक्शन मूवमेंट और डायरेक्शन रहते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। इन अदर वर्ड यू कैन से डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर एक्टिविटी इज नोन एज ऑब्जेक्टिव। या अनदर वर्ड द्वारा बोल सकते हैं इसको कि जो ऑब्जेक्टिव हमारा डायरेक्ट करता है और एफर्ट्स को। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट्स आर एफर्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें किस दिशा में काम करना है, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज ए प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन इज प्लान। जो भी पहले से डिसाइडेड कोर्स ऑफ एक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, पहले से निर्धारित जो होता है। ए ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन इज नोन एज प्लान। ब्लूप्रिंट को बोलते हैं हम खाका तैयार करना, कि भी जो आपने खाका तैयार किया, रूपरेखा भी बोल देते हैं उसको, रूपरेखा तैयार कर लेना। ठीक है, वो क्या होता है, ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन, आपको एक्शन कैसे लेना है। ठीक है, प्लान ऑफ वर्क इंडिकेट्स 5W एंड 1H। जो हमारा प्लान ऑफ वर्क होता है उसमें क्या होता है, 5W एंड 1H। 5W मीन्स व्हाट, वेयर, हु, होम, वेयर। ठीक है, व्हाट एंड 1H इज हाउ। ठीक है, तो 5W 1H आता है हमारा इसमें। एक्सटेंशन वर्क ग्रीव अप आउट ऑफ सिचुएशन। जो हमारा एक्सटेंशन वर्क ग्रीव आउट ऑफ होता है, क्या होता है, सिचुएशन। बिकॉज इन एस्टेब्लिशिंग ऑफ एनी प्रोग्राम वी ऑलवेज कंडक्ट एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। सिचुएशन के बेसिस पर ही हम अपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, कंडक्ट करते हैं। एंड द लास्ट वन है कोर्स ऑफ प्रपोज एक्शन टू चेंज अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन टू मोर सेटिस्फाइंग, दैट इज सोल्यूशन। ये हमारा क्या होता है कि कोई भी हमारी एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारी क्या है, अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन है, उसको किस में कर देते हैं कन्वर्ट, मोर सेटिस्फाइंग, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को हम सिंपली क्या कह सकते हैं, इट इज़ ए प्रपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि जो हमने प्रपोज कर दिया है, कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स बाय यूजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्शन यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन। सो आई होप you have learned lots of things from this lecture, and thanks for watching my videos, and we will meet soon again. Thank you.